Hello everyone, and welcome back to Wisdom Waves Wednesday. And I'm welcoming you to our season 2. So, we are starting our season 2 today. And I'm Swati Gupta, parenting coach and child psychologist, founder of Joyful Parenting Club. And this is where we dive into stories with purpose, reinvention, and everyday wisdom that speaks to the soul. And today's guest is someone super special who has beautifully redefined success and creativity on her own terms. After two decades of intensive work in IT consulting and leadership roles at different organizations, Anupama Rastogi has slowed her profession in a manner which is closer to her passion. She's now a home decor influencer, a poet, and a guiding light for everyone who wants to bring beauty, calm, and meaning to her home. So, whether you're a mom with no time to style, a dad who wants peaceful corners, or someone who is wondering for home styling could be the real career, then this conversation is for you. So, thank you so much, Anupama, for being our guest, and it is so heartwarming to see you here. Thank you so much, Swati. You have given such a beautiful introduction of myself. Thank you so much. My pleasure. It is such an honor to be with you. Same So, here. so I have some amazing questions for you, Mhm. and I want you to answer all direct dil se. Okay? Okay. Okay. So, to start with the first question, what Mhm. inspired you to leave the high pressure of IT career Mhm. and choose a slower and more creative life? And also, you mentioned that you were balancing as a home decor influencer with your job. So, how Mhm. did that shift, and what exactly made you leave and focus completely on this? Because it was Okay. your stress buster even when you were doing job. Hmm. So Yeah. basically, this decision was not a dramatic. ऐसा नहीं हुआ कि पिक्चरों की तरह अचानक सोचा और छोड़ दिया. वैसा नहीं होता. Real life is different. Basically, maybe there was a series of incidents which made me realize what I really want from life. Okay. So Okay. there were many reasons. Basically, I was doing good, but as you know, and now in corporate jobs, you have to run. You have to balance basically. So Absolutely. two primary reasons why I quit is because my parents and in-laws have shifted with us. Oh wow. So yeah. So we all are staying together. So we have, I like, one has to take care because one has to manage home and all those things. So I thought, Obviously, I agree. yeah. So that was the one reason. And second is life में हम कई बार ये सोचते हैं ये हम कब करेंगे. Like we have a long wish list कि अगर मेरे I पास agree. टाइम होता तो मैं ये करती, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं ये करूंगी, पर वो टाइम कब हाँ, आएगा. So we are in this right. rut of running. So I thought, और Correct. मैं like I am already 50 plus, so I thought this is the time. Let's slow down, take a break. And then I decided I will take a break, take care of home and all those things, and slow down Wow. and do whatever I wanted to do. जैसे मैं Wow. पोइट्री लिखती हूँ, मैं गार्डनिंग करती हूँ, तो उन सब के लिए आई विल बी हैविंग मोर टाइम. Lovely, lovely. So That's that awesome. way, So it was completely by your choice. yes, by my choice. Wow, that's so lovely. So do you feel our homes reflect our emotional state? Absolutely, And, 100%. and why do you feel So that? Like, yeah, so like if you see any home which is cluttered, chaotic, so maybe those people are not having a time or they are under the stress and all those things. And at correct, times you enter a home, you feel the vibe because vibe is the new word because you don't have to say anything. You feel peacefulness, correct. warmth. The whole is home is well organized, or it is peaceful, serene. So now the word Hmm. is vibe. कि इस जगह की कुछ vibe अच्छी है बहुत यार. अच्छी है. हाँ. तो वो Correct. घर में मतलब जैसे हम बोलते हैं ना हर घर कुछ कहता है. हाँ. Oh, तो lovely. आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, घर में जाके पता चल जाता है warmth. Right. Lovely. So, Lovely. because what happens is if you are running around, you don't have time to take care of home because Correct. you have little time to take care of yourself, family, work, health. Mhm. So,
जनरली घर सबसे पीछे पहुंच जाता है. करेक्ट करेक्ट. इसको वीकेंड पे कर लेंगे, दिस आई विल डू. सो यू हैव द लिस्ट which keep on हाँ, postponing, so correct. you are not able to take care of home. Absolutely, absolutely, So I agree. so if you are well organized, you will have time for everything. If you have time basically nowadays, everything comes down to time. यार time नहीं है, मैं भाग रही हूँ, मेरे पास time कहाँ है, मैं सुबह भागती हूँ, मैं शाम को पहुँचती हूँ. By the time you reach home, you are so drained out, you just wanted to relax. Absolutely, absolutely. So home are totally, because homes don't tell a lie. घर सच कहता है. हाँ हाँ, so तो true, so true. आप किसी के घर जाओगे, वो कितना ही कुछ बोले, आपको घर देख के ही पता चल जाता है. मतलब थोड़ा सा है, नॉट एग्जैक्टली, पर घर से पता चल जाता है. बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल. वहां जाके अच्छा लग रहा है, यू फील वेलकमिंग, सो दैट मीन्स हाँ, इफ होम that's ओनर्स positive. हाँ जो घर में रहता है वो शांत है, पीसफुल है, तो घर वैसे ही दिखेगा. हाँ सब हाँ भाग रहे हैं तो घर भी chaotic सा होगा. हाँ, वेरी ट्रू वेरी ट्रू. नहीं नहीं, ये आपने बहुत पते की बात बोली, क्योंकि जब जब मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं तो उसके पेरेंट्स आते हैं, तो वो तुरंत यही बोलते हैं कि मैम आपके घर में घुसते ऐसा लगता है कि खुशियों वाला घर है. वाई? बिकॉज ऑब्वियसली देर आर ऑलवेज चिल्ड्रन कमिंग इन माई हाउस, सो देर विल ऑलवेज बी लाफ्टर, फन, मस्ती एंड ऑल दोज थिंग्स. सो वो ऑटोमेटिकली घर में दिखता है, क्योंकि मैं प्लांटर्स जानबूझ के लगाया हुआ है घर में, सो दैट तो पॉजिटिव एनर्जी आ गई बच्चों के साथ, लाफ्टर की, उसकी. अभी अगर मैं स्ट्रेस में हूँ, आई एम रनिंग, सो दैट नेगेटिव और स्ट्रेस्ड एनर्जी इज एंटरिंग इनटू माय होम. करेक्ट. सो सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई शांति से नहीं बैठ रहा है. सो वो आपके घर में टोटली रिफ्लेक्ट होता है. Wow, wow, that's so true. That is so, so true. So which comes to my next question. You talked about limited time. True है. Every parent have very limited time. Budget constraint. तो हमें लगता है कि हम जो home budget होता है या home decor का budget होता है, वो हम सबसे last में रखते हैं. हम सब कुछ को प्रायोरिटी देते हैं. तो आप मेरे को ये बताओ, how can parents with limited time and budget make their homes feel calm and beautiful? So first of all, like it's not directly proportional कि मेरा घर में बहुत expensive decor है, so my home is peaceful. ये जनरली हमारा मिथ होता है कि वेल डेकोरेटेड होम डजंट मीन इट्स अ वार्म होम. करेक्ट. सो घर का उससे कुछ लेना देना नहीं है. बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल. ओके. सबसे पहले आराम से आप पहले सोचो कि मुझे घर में क्या है, छोटा छोटा चीजें करो. स्टार्ट स्मॉल. फर्स्ट इज डीक्लटरिंग. अननोइंगली अभी हमारे घर, थैंक्स टू Amazon, फ्लिपकार्ट और ऑल दोज ऑनलाइन पोर्टल्स, बिकॉज everything is must for us. अरे ये मेरे पास तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, and it takes I think hardly 5 or 10 seconds in order to anything. Earlier what used to have is you used to wait, you used to think whenever I will go market I will buy it, and when you used to go to market maybe you are searching on 2-3 shops, doing lot of research, so maybe in between आपको लगता था maybe it is not a necessity, maybe I will buy after Diwali or something like that. Right. Now because everything is just a click away, and we have like disposable incomes, we all are working, we are well off, so मंगाने से पहले हम सोचते ही नहीं. Absolutely. So unknowingly over a period of time you have lot of things at home which are coming, and all of us are mostly staying in apartments which have a limited space. Correct. बच्चे भी हैं उसमें, फैमिली भी है, किसी के पेरेंट्स भी हो सकते हैं. तो जब अपने घर में आप शिफ्ट हुए थे तो मे बी यू वर हैविंग अ लिमिटेड स्टफ फॉर डेकोर आइटम्स, बट ग्रेजुअली सामान बढ़ता जा रहा है. करेक्ट. एंड वी डोंट, और हर चीज हमारे लिए जरूरी है इसलिए हमने उसको खरीदा है. करेक्ट. नहीं वैसे वो तो बात सही है, बिल्कुल सच है. मतलब आई कैन फील इट. एक तो मतलब इतनी आदत होती है हमें चीजें लेने की दैट वी जस्ट. आई थिंक उसका एक गोल्डन रूल है, अगर आपको कुछ भी खरीदना है उसको अपनी कार्ट में डाल लो and let it sit for 1 week or 2 weeks. हो सकता है 1 वीक बाद अपने आप ही कार्ट से डिलीट कर दो, क्योंकि अभी हमारी ये थेरेपी हो गई है शॉपिंग भी लोगों के लिए, कुछ कार्ट में डालना है, कुछ खरीदना है, उस तरह से. फर्स्ट इज स्टार्ट स्मॉल. पहले डीक्लटर कर. हो सकता है घर में बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं चाहिए. हम कहते हैं अगर घर को थोड़ा सा साफ कर दो. लाइक ए सिंपल एग्जांपल, इफ यू आर कुकिंग समथिंग इन योर किचन, इफ यू क्लीन योर किचन शेल्फ और काउंटर, किचन लुक सो क्लीन, सो इनवाइटिंग. और अभी खाना बनाने के बाद मैं उसको वैसे ही छोड़ दूं तो कितना अनवेलकमिंग सा लगता है किचन में. करेक्ट. सो सेम गोज फॉर होम.
पहले थोड़ा सा हाँ डीक्लटर करो व्हाटएवर इज नॉट रिक्वायर्ड, क्या जरूरत नहीं है, या मे बी आई हैव फ्यू थिंग्स व्हिच आर लाइंग अराउंड, ट्राई टू यूज हाँ स्मॉल बास्केट्स, उनको बास्केट्स में अरेंज कर दो, मे बी लॉन्ड्री लाइक डर्टी क्लोथ्स आर लाइंग हियर एंड देयर, कीप अ बास्केट इन द किड्स रूम, कभी भी स्कूल से दे हाँ जस्ट हैव टू पुट देयर क्लोथ्स और यूनिफॉर्म इन द बास्केट, सो रूम विल लुक क्लीन दैट वे। हम्म, हाँ हाँ हाँ, वेरी ट्रू सो आप वेरी ट्रू। डीक्लटर कर सकते हो। सेकंड आपने बोला जैसे कि बजट के लिए, बजट का मुझे हम्म एक सेकंड लगता है रीपर्पसिंग और रीअरेंजिंग। हमारा हम्म, क्या होता है, हम सेम सेटअप में रहते हैं तो हम थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, वी फील कि करेक्ट, घर में कुछ नया करते हैं, सो जस्ट ट्राई हाँ टू रीअरेंज योर होम, वो एक नया हम्म, लुक आ जाएगा। या आपके हाँ पास हाँ, कुछ पड़ा है उसको हम कैसे रीयूज कर सकते हैं। हम्म, जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, वी गेट दीज बिरयानीज इन द हांडीज, हाँ सो करेक्ट आपने हांडी ली, उसको बच्चे से पेंट करवा लिया, एक प्लांटर बन गया, उसको एज अ प्लांटर यूज कर लो, करेक्ट करेक्ट, which is a like your kid will feel happy because he or she is राइट, painting something, making a DIY, करेक्ट, or you two are spending some time together in creating a राइट, new एब्सोल्युटली piece of art. एब्सोल्युटली, हाँ, हम्म, So सेकेंड हो गया कि आप जो भी आपके पास है उसको रीपर्पस करो या रीअरेंज करो। ठीक है ठीक है, डीक्लटरिंग हो गई, रीपर्पस रीअरेंज हो गया। थर्ड है, मैं डेकोर में हमेशा बोलती हूँ ट्राई टू कीप सम फ्रेश एलिमेंट्स, लाइक हाँ जहां पे आपके आते हैं फ्रेश फ्लावर्स और प्लांट्स, हाँ हाँ, because you cannot have fresh flowers every time generally, अभी हमारे पास टाइम ही नहीं होता when we are rushing home and all those things, करेक्ट, but suppose if I'm getting those flowers at the end of the week और मैंने घर में लगा दिए, so those look so welcoming, बहुत अच्छे लगते हाँ, हैं fresh। I think fresh flowers are the easiest source of instant freshness to any corner। राइट राइट, आप कुछ नहीं है तो एक प्लांट रख लो कहीं पे भी। सो हाँ, नेचर इज अ थेरेपी, मतलब नेचर देख के आपको यू फील लाइफ इज देयर। हाँ, वेरी So ट्रू try, वेरी ट्रू, whenever whichever corner is dull or you feel it is not very dull, यहाँ पे क्या करूँ, वहाँ एक छोटा सा प्लांट रख दो। हम्म, और प्लांट बहुत ज्यादा, मैं लाइक आई विल मे बी आई कैन डिस्कस, प्लांट्स को खरीदने में बहुत ज्यादा नहीं, यू कैन स्टार्ट स्मॉल, पहले एक या दो करेक्ट, प्लांट्स लाओ, हाँ, उनकी केयर करो, मतलब हर एक प्लांट पेरेंट के साथ होता है। करेक्ट, Unknowingly we killed many plants in the starting हाँ हाँ हाँ, and gradually you learn। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली, So plant therapy is another thing। हाँ, एंड फोर्थ इज ट्राई टू यूज वॉशेबल फैब्रिक्स बच्चों के साथ ना, क्योंकि हम्म, आपके सामान बहुत गंदा होता है, गिरता है, जो भी चीज वॉश हो सकती है इजीली, राइट राइट राइट, फेयर, उस तरह से यूज करो। एंड योर होम शुड बी फंक्शनल, कंफर्ट हम्म इज द मेन थिंग। बजट हम्म में डेकोर में हमेशा याद रखो कंफर्ट इज द मेन थिंग। कई बार हम्म, इट शुड बी, मैंने मान लो कुछ शो पीसेस लेके बीच में रख दिया, बट मैं किड इज प्लेइंग इन ऑल दोस थिंग्स, तो वो हो बीच में आ रहे हैं तो जाए, गिर जाएगा, ये सब होगा। हाँ हाँ, तो होम शुड नॉट बी परफेक्ट, इट बिकॉज वी आर लिविंग इन अ रियल होम। वो मुझे राइट, मैगजीन वाला होम नहीं चाहिए, वो हमारे बच्चों के साथ हो भी नहीं सकता, वो वी रखना ऑल भी आर नहीं है। पेरेंट्स को, बच्चे को बताओ ये रियल होम है, तुम कुछ भी करो घर में। और हाँ, अगर आपको डेकोर का करना है तो यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ डेजिग्नेटेड स्पेस, लाइक जैसे ये मेरा लिविंग रूम है, मैंने साइड में कोजी कॉर्नर बना दिया जहां मैं और मेरा बेटा, ये हमारा रीडिंग कॉर्नर है, राइट हम यहाँ राइट, बैठ के पढ़ेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं कि लिविंग रूम में कोई बैठ ही नहीं सकता, फैल जाएगा, ये होगा। सो यू हैव कोजी कोजी कॉर्नर्स अक्रॉस द बालकनी में एक छोटा सा बना दिया। करेक्ट, वाओ, सो बजट डेकोर ऐसा कुछ नहीं कि हम कम बजट में कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास जो भी हम उसी को कर सकते हैं। अपने घर को क्लटर फ्री करो, रीअरेंज करो, जो हाँ, हमारे पास है उससे क्या कर सकती हूँ रीअरेंज कर लो, करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस, प्लांट्स रख लो, फ्रेश फ्लावर्स रख लो। हाँ हाँ, सो डीक्लटरिंग का ना आई ऑल्सो कम्प्लीटली बिलीव, तो मेरा ना एक थ्योरी होता था दैट एवरी 6 months इफ यू डोंट नीड समथिंग दैट मीन्स इट नीड्स अ रीहोमिंग, वेरी because ट्रू। owing less is better than organizing more. So I follow this so much कि मतलब क्या होता है, और I am a kind of a person, I'm very emotional with things, I'm emotional with people, I'm emotional with things। अच्छा ये साड़ी मैं पता नहीं जिंदगी में कभी नहीं पहनूंगी, बट मैं फेंक नहीं पाती। तो नाउ लाइक मतलब वी हैव मेड अ कॉन्शियस एफर्ट, नहीं हम देंगे किसी को, हम इससे अच्छा चैरिटी करेंगे। अब हम बोल देते ना चैरिटी तो
फिर भी मन करता है देने का, अदरवाइज वो माइंड में ब्लॉक रहता है, नहीं पता नहीं शायद कुछ ये होगा, तो मैं बेटी के लिए सलवार कभी नहीं बनाऊंगी साड़ी का सलवार सूट, बट वो देने लायक देते ही नहीं हम कभी, बिकॉज I think एज वुमेन हमें आदत होती है चीजों को ना अपने पास रखने की, ओन करने की, वो इमोशंस इन्वॉल्व कर देते हैं विद नॉन very लिविंग true. थिंग्स। तो नाउ मतलब जैसे आपने decluttering बोला, मतलब इट जस्ट ब्लू माय माइंड, आई सेड yeah, I also feel the same thing, because decluttering में मतलब I was struggling so much. Now I consciously do it because I realize emotions बच्चों से होता है, emotional family से होता है, not with things. If you remove it, only then that space will be vacant for new things to come in. And Or I for think yeah, बिगेस्ट थिंग इज जो चीज मेरे पास है मैं यूज नहीं कर रही, अगर वो किसी के काम आ जाए, सो देयर इज नथिंग मोर लाइक इट, मतलब उससे ज्यादा बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, very true, very true. जैसे हम बच्चों के कपड़े रखते रहते हैं, बुक्स रखते रहते हैं, ये रखते रहते हैं, फिर एक सिंपल, वी हैव लिमिटेड स्पेस एंड ओवर द हाँ, इयर्स थिंग्स आर एक्यूमुलेटिंग। correct, आई थिंक correct. जैसे तुमने 6 मंथ्स करा, मैंने 1 ईयर कर रखा है, अगर 1 ईयर में कुछ पहना नहीं, कुछ यूज नहीं किया, सो दैट मीन्स इट हैज टू गो। करेक्ट, करेक्ट, नहीं, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बिकॉज वो करना पड़ता है, मतलब दिल पे पत्थर रख के करना पड़ता है, बट आई हैव सीन वो नहीं करो तो नहीं होता, बिकॉज आई हैव सीन दैट like my husband's beautiful suits, like proper suits. Now he's become like, पहले हमारे क्या होते थे, फ्लैट मतलब फ्लेयर फ्लेयर वाले आते थे, तो हमारे पास वही सारे सूट्स बड़े बड़े, अब वो जिंदगी में कभी नहीं पहनने वाले। अब वो क्योंकि मतलब इन्हें पसंद था तो वो रखा गया, फिर इन्होंने बोला तो अब हटा दे, मेरे सामने ही नहीं, तो नाउ वी हैव गिवन इट टू दीदी, एंड द पीपल हु हैव गिवन, दे शी वाज गेटिंग हर सन मैरिड, तो शी वाज सुपर हैप्पी टू गेट इट, तो somebody has, we have given happiness to that person by giving those एग्जैक्टली। foods. For us it was nothing. After 2 years probably we would have seen it would have caught on or whatever. जैसे बोलते हैं ना मछलियां आ जाती है कपड़ों में, तो मछलियां भी आ जाती है, वो रखे 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 रखे, तो that's so true. So which comes to our next question. When you talk about plants, you picked up a topic which we so wanted to talk about. What role do plants, balcony gardens, or maybe greenery play in a peaceful home? मतलब वो क्या रोल प्ले, we all have it, we all know plants are beautiful, but what role does it play really? देखो, प्लांट्स आर नाउ डेज इन टूडेज लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेट्रो लाइफ वेयर वी आर लिविंग इन अ कॉन्क्रीट सिटी। सो Correct. याद है अपना बचपन कैसे होता था, हर तरफ ग्रीनरी होती थी, हाँ, मतलब आप हाँ, उतरिए आपके घर के पास ग्रीनरी, हजारों पेड़ हैं, पौधे हैं, मतलब ऐसा होता ही नहीं था कि ग्रीनरी हाँ, नहीं है। नाउ correct. डेज इट इज टोटली अपोजिट, यू हैव Hmm. कॉन्क्रीट, एक छोटे छोटे पार्क्स बने हुए, दैट्स इट, सो वी आर लिविंग इन अ कॉन्क्रीट जंगल। सो Hmm. आई फील नेचर ऑफ प्लांट्स इज अ थेरेपी, और फिर Hmm. उसमें गार्डनिंग तो बिल्कुल थेरेपी हो ही जाती है, बिकॉज वेन एवर यू सी अ प्लांट यू सी द लाइफ, पावर ऑफ ग्रीनरी। और मतलब थैंकफुली वी आर इन एनसीआर वेयर एक्यूआई इज अनदर रीजन। हाँ, actually. एक्यूआई अभी ठीक है, जैसे ही विंटर्स आएंगे आपकी एक्यूआई ये हो गई, लोग आधे टाइम एक्यूआई ट्रैक करते रहते हैं, Correct, so correct, people have purifiers at home and all those things, but plants are natural air purifiers. correct, So correct. now suddenly there's a lot of emphasis of keeping plants at home. Absolutely. And there are special वो plants बोलते हैं ना, these 10 plants, keep it at home, from Erica palm for this, for money plant, ये वो, but because we talk about Rafflesia, we talk about those plants which are actually natural air purifiers, but the fact of situation is many plants we don't talk, they are also acting as natural purifiers. So we never thought about it, क्योंकि हम in our childhood we were taking everything for granted because वो हमारे surroundings में थे, हमने इतना ध्यान ही नहीं दिया। अचानक सब कुछ खत्म हो गया, वी आर रियलाइजिंग कि एक्यूआई बढ़ रहा है, इतना पोल्यूशन है, स्ट्रेस लेवल है, सडनली रियलाइज हुआ दीज आर द नेचुरल थेरेपी, यू डोंट हैव टू गो टू अ थेरेपिस्ट, आपके Correct. पास है सब कुछ। अगर आप एक प्लांट भी लगाओगे ना, व्हेनेवर यू विल सी अ प्लांट यू विल फील लाइफ, एज इफ हाँ, लाइफ इज ग्रोइंग। मे बी यू आर वेरी एग्जॉस्टेड, बट व्हेन यू हाँ, सी अ प्लांट, आप आए, आपने देखा एक नई कली खिली है, एक नई पत्ती आ रही है, so you will feel immense so happiness nice. हाँ, because it हाँ, is like nurturing, like as a parent we are nurturing our kids. So correct. nowadays the new term is plant parent, because हाँ, many people who are single or they are going for a planting, like they are having a lot of plants, because you have absolutely. to nurture a plant like a baby. So you are Hmm. taking proper care, you are watering, you are putting fertilizer, like sunlight and all those things, so it is like something nurturing a life, so हाँ, automatically you will feel happy from inside. correct, correct. So Very true, very true. ब्यूटीफुल हैप्पीनेस। अब हाँ, आपको कोई भी कॉर्नर डाले, आपने वहां एक पौधा रख दिया,
आप सपोज हाँ, 3-4 दिन बाद आके देखते हो, आपने देखा अरे पौधा मर गया, यू विल फील सैड। so bad. हाँ, अरे कैसे हो गया, अरे मैंने इसको, मे बी आई हैव ओवर वाटर्ड और मे बी आई हैव डन समथिंग। एंड स्पेशली व्हेन यू हैव किड्स एट होम, आई थिंक दिस हाँ, इज द बेस्ट वे टू टीच किड्स। लाइक yeah. वी डू दोज स्प्राउटिंग्स एंड ऑल, आपने हाँ, स्प्राउट किया, उसमें से my छोटा छोटा निकला, दे विल सी हाउ लाइफ इज इवॉल्विंग। सो दोज आर द लाइफ लेसन्स। correct, correct. सो आई फील प्लांट्स, और अगर आपका बालकनी गार्डन है, आप यू कैन स्टार्ट स्मॉल, कोई किसी को भी नहीं आता प्लांट्स के बारे में, हम आप Hmm. बहुत इजीली शुरू कर सकते हो। जैसे बेस्ट एग्जांपल इज मनी प्लांट। Okay. सो जनरली मनी प्लांट आप मिट्टी में लगाते हो। Hmm. बेस्ट पार्ट अबाउट मनी प्लांट इज यू कैन ग्रो इट इन वाटर ऑल्सो। Water. Hmm. सो आपने बॉटल ली, उसमें मनी प्लांट रख दिया, देयर, सपोज यू आर ट्रैवलिंग गोइंग आउट, यू डोंट हैव टू वाटर इट ऑल्सो, इट विल ग्रो Grow on its own. Right. automatically. So plants will grow. Similarly, nowadays we have many low maintenance plants, Okay. even which I was also not aware. आप वो maintenance plants ला सकते हो जिनको आप वीक में केवल एक बार पानी दो, लाइक स्नेक प्लांट, जीजी प्लांट। इफ यू वांट आई कैन शो यू ऑल्सो, मैंने यहीं पे रखे हैं। Oh, lovely. Please do. Please do. हाँ, जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज अ स्नेक प्लांट। Hmm. Wow. इसको, इट इज अ नेचुरल एयर प्योरीफायर, इट इज अ मस्ट हैव इन बेडरूम्स, Okay. स्नेक प्लांट। Wow. और इसको आपको पानी नहीं देना होता। एक और चीज जो मैंने अपनी प्लांट पेरेंट की जर्नी से सीखी है, यू किल मोर प्लांट्स बाय ओवर वाटरिंग। हाँ, that is true. नीचे वो कम कीचड़ पानी होता से नहीं मरते, ज्यादा पानी से मर जाते। समथिंग Correct. लाइक किड्स की ज्यादा प्यार करके हम उन्हें बिगाड़ देते हैं। हाँ, हाँ. Over parenting is bad. बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है नेचर का रूल। सो ये हाँ. एक स्नेक प्लांट है, इसको 7 दिन में आप एक बार थोड़ा सा भी पानी दोगे चलेगा, ये मरेगा नहीं कम पानी की वजह से। सो Correct. इफ आई एम ट्रैवलिंग गोइंग ओवर द वीकेंड्स, इट इज परफेक्ट प्लांट, कुछ नहीं होगा Yeah. इसको। मैं एक और प्लांट दिखाती हूँ, ये पता नहीं लोगों को शायद ज्यादा पता नहीं होता, दिस इज कॉल्ड जीजी प्लांट। My favorite. हाँ. इसको भी 10 दिन में एक बार पानी दो चलेगा, हाँ. इसको कुछ नहीं होता। हाँ. अब मैं एक और चीज दिखा रही हूँ, जैसे मैं बोल रही थी मैं वाटर प्रोपोगेशन करती हूँ, सो यू कैन हाँ. सी दिस इज अ ब्यूटीफुल वास, राइट। हाँ. हाँ. सो Correct. मैंने इसमें पौधा कैसे लगाया, ये मैं बहुत करती हूँ, दिस इज माई फेवरेट। हाँ. Oh wow. तो आपको कुछ भी नहीं करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज, दिस इज सिंगोनियम Hmm. विच इज वाइडली अवेलेबल, आपको कहीं पे Correct. भी सिंगोनियम मिल जाएगा। आप उसकी कटिंग लो, उसको पानी में डालो और रखो, इट विल ग्रो जस्ट लाइक मनी प्लांट। Right. Right. सो Wow. ऐसा नहीं कि मुझे आई हैव टू स्पेंड अ लॉट, आई हैव टू स्पेंड अ हाँ. लॉट ऑफ मनी और मनी, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ नहीं। स्टार्ट Hmm. स्मॉल, आप शुरू में 3-4 पौधे लाओ, नहीं ला Correct. सकते पानी में लगाओ, make Hmm. some green corners, you will start enjoying it and gradually you can grow. But ये Wow. नेचुरल स्ट्रेस बस्टर है, जैसे आजकल पेट्स को बोलने लगे हैं, हाँ. बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न, बस सिंपल थोड़ी सी केयर चाहिए उनको। Correct. Correct. Absolutely. Same with these also. They don't. They just Yes. need a little care. Just you said over watering से ज़्यादा मरते हैं than less water. Yes. So yes. और फिर आप अपना बालकनी गार्डन बना सकते हो, पहले 2 पौधे लाओ, 4 लाओ, फिर यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट एज अ थेरेपी, क्योंकि आप करोगे, गार्डनिंग इज अ थेरेपी। आप हाँ. कर रहे हो, देख रहे हो कैसे आपने जो लगाया वो बड़ा हो रहा है, इसको मैं क्या केयर करूं, Wow. सो यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद योरसेल्फ। हाँ. हाँ. Lovely, lovely. So, what are those common myths? आप क्या सुनते हो generally कि about perfect homes, about planting, or about being a parent plant? क्या होता है generally? लोग क्या किस बारे में सबसे ज़्यादा common myth आप सुनते हो? एक तो शायद मुझे सबसे ज्यादा लोगों का ये दिखता है, लोगों को लगता है घर परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा, एक भी धब्बा नहीं, ये नहीं, एक समान इधर से उधर नहीं। I totally agree कि अगर if it is a living room, at least cushions should be on sofa, not cluttered and all. But हाँ. अगर रियल घर है, लोग रह रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? हाँ. It should be real home, not Right. real home, Instagram की रील टाइप नहीं कि मेरा घर है, कुछ भी नहीं है, वो सब वही है, वैसा नहीं है यार, ये रियल घर है, इसमें लोग हाँ. रहते हैं। मतलब इट हाँ. इज नॉट होटल की मैं वहां गई, जो चीज जहाँ थी वहीं पे है, ऐसा नहीं Correct. चाहिए। Correct. हाँ. और अगर बच्चे रहेंगे उन्हें भाग, जैसे लोग कहते हैं हमारे बच्चे ने दीवार पे कुछ कर दिया, ये कर दिया, यू कैन लाइक जेंटली टीच किड्स। आप उनके रूम में एक वॉल बना दो कि आपको हाँ. जो करना है आप करो, आप ड्राइंग करो, जो करो, मतलब यू हैव टू टीच किड्स अकॉर्डिंगली।
हाँ तो आई थिंक हाँ पहला मिथ तो है सबको ना, बिल्कुल आजकल तो स्पेशली सोशल मीडिया या पिक्चर देख के मैगजीन जैसा घर चाहिए, कि ऐसा सोफा हो, ऐसे कर्टेन्स हो, ऐसा ये हो, वैसा नहीं भाई, घर रियल लोगों से बनता है। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी लोग होने चाहिए, लोग खुश होने चाहिए, घर अपने आप खुश होगा। हाँ हाँ। सो ट्रू, सो ट्रू। सेकेंड मिथ है अबाउट लाइक कि कॉस्टली होम इज अ ब्यूटीफुल होम। हाँ जैसे मैंने पहले भी कहा, आप अपने बजट में भी, मेरा बजट ज्यादा नहीं है एंड आई वांट टू डेकोरेट माय होम। मेरे बच्चे ने कुछ पेंटिंग्स बनाई, आई कैन फ्रेम दोस पेंटिंग्स और एक वॉल पे लगा सकती हूँ। हाँ, हाँ, हम अपने फोटोज जो है फोटो गैलरी बना सकते हैं एक दीवार पे। करेक्ट करेक्ट। आपको कोई एक्सपेंसिव जाने की जरूरत नहीं है कि कॉस्टली हाँ होम इज अ होम। और हाँ थर्ड है कि एवरीथिंग शुड बी मैचिंग। अरे भाई, हाँ। ये मेरे घर की थीम में नहीं जा रहा, ये मेरी थीम से मैच नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। घर हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बन रहा है, राइट? मैं हम्म। ऐसे मे बी इन द स्टार्टिंग देयर वाज अ थीम, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू कैन एक्यूमुलेटिंग थिंग्स, कुछ हो रहा है। सो हाँ, मिक्स एंड मैच ऑल्सो वर्क्स परफेक्टली। एब्सोल्युटली। आजकल तो मिक्स कॉन्ट्रास्ट का जमाना है। You कॉन्ट्रास्ट है, contrast पैटर्न कर मैच सकते हो करो, ये pattern, मैच करो, हाँ। कुछ भी मैच करो। और किसने रूल बनाया? आपका घर है, आपका रूल है यार। हाँ, मेरा फेवरेट कलर ये है, मैं उस हिसाब से बनाऊंगी यार, जरूरी है कि मेरे को मैचिंग मैं ही उसके करनी हिसाब से चलूंगी कि ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। सिंपल है, घर ऑर्गेनाइज्ड हो, प्रॉपर जगह हो सामान की, उसको है। वैसे बनाओ। और एक करेक्ट। थर्ड है मिथ वाला कि बहुत वैसा होना चाहिए। मुझे लगता है घर कंफर्टेबल होना चाहिए। हाँ आपने सामान बना दिया, आके बैठे, कंफर्ट नहीं मिल रहा, इट शुड बी कंफर्टेबल फर्स्ट। हाँ हाँ। फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको कंफर्ट मिल रहा है देन गो फॉर दैट पर्टिकुलर फर्नीचर राइट आइटम और पर्टिकुलर थिंग। राइट राइट। फर्स्ट इज कंफर्टेबल। करेक्ट करेक्ट। सो ये कुछ मिथ्स हैं जो हमने बना रखे हैं कि कॉस्टली होगा तभी अच्छा लगेगा, मिक्स एंड मैच नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपका घर आप जैसे चाहे रखो। राइट राइट। नहीं, एब्सोल्युटली आई एग्री, क्योंकि अनुपमा मेरे को ये याद है, हमने ना बड़ा सुंदर सूरजकुंड से कुशन कवर्स लाए थे। हाँ, एकदम चमक धमक ये सोच के लाए थे बड़ा अच्छा लगेगा। उसमें हम बैठे एंड वी जस्ट कुडंट सिट वो बिकॉज चुभने लगा होगा। वो हमें चुभ रहा था, इट वाज नॉट इवन कंफर्टेबल। वो तब से पैक होके अलमारी के अंदर है, हमने कभी रखा ही नहीं, बिकॉज वी नेवर फेल्ट कंफर्टेबल, वी नेवर फेल्ट इट वाज आवर होम। हम लाए तो एग्जैक्टली। बड़े शौक से, बट कभी यूज ही नहीं किया, बिकॉज अब बच्चे भी बोलते मम्मा चुभ रहा है। हम भी बैठ रहे हैं तो हम उस पर बैठ नहीं रहे, उसको हटा के साइड में रख रहे हैं फिर बैठ रहे, तो फायदा क्या उसको लाने का। हम शो पीस की तरह लाए हैं उसको। अब आप जैसे देखो, कई बार हम बहुत ज्यादा घर को क्लटर कर देते हैं। तो वो जो हाँ, क्लटर है ना, दैट गिव्स यू अ विजुअल नॉइस, बहुत ज्यादा सामान भरा हुआ है। या करेक्ट। मैंने शो पीसेस बहुत रख दिया, फिर बच्चे को बोल रही हूँ उधर मत जाना, उधर मत छूना, ये मत करना, टू मच केयर। हाँ हाँ। तो होम गेस्ट आता है महीने में, 6 महीने में एक बार, बच्चा तो रोज रहता है यार। हाँ, करेक्ट हम करेक्ट। किसके लिए कर रहे हैं? उस गेस्ट के लिए जो साल में 2 या 4 बार आएगा। और वो हाँ। बच्चा जो दिन भर घर में रहता है उसके लिए हम कह नहीं बेटे ऐसे मत करना, अगर कुछ गिर गया तो बस सोच लो बच्चे की। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं नहीं, ये फैक्ट है, मतलब ये तो घर घर की प्रॉब्लम है। बिकॉज आई रिमेम्बर हर हर दूसरे दिन मेरे बच्चों से यही लड़ाई होती है, तुम लोग जगह पे नहीं रखते हो, तुम लोग ये नहीं रखते। मतलब ऑब्वियसली स्कूल से आए हैं, रिलैक्स करेंगे, काम करेंगे, टेबल पे ही काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे। बट वो नाइट में ये एक रूल बना दिया हमने कि हाँ, नाइट में यू हैव टू पुट इट बैक ना। जब से वो रूल बना है, इट्स स्टिल बेटर। नहीं तो हम शाम से हमारे घर में लड़ाई हो रही है, यार बुक यहाँ क्यों है? तो कहाँ रखोगे मम्मा? अब तो बच्चे ऐसे बोलने लगे, मम्मी कहाँ रखे बताओ, सिर पे रख ले बुक्स। Because at the end of the day, if the children are studying in that room and the children are studying together, हम लोग सब एक साथ ही बैठ के काम करते हैं, क्योंकि वो आदत वैसी पड़ी हुई है कि हम सब डाइनिंग टेबल पे बैठे, तो ऑब्वियसली बुक्स रहेंगी। अब हमने ये बना दिया कि नहीं भाई, अब रात को 9 बजे से पहले, जब तक आप सोने जा रहे हो उससे पहले बस यहाँ से गायब कर दो। आप चाहे अपने बैग में रखो, बाहर रखो, कहीं भी रखो, बट थ्रू आउट द डे वी डोंट नैग कि भाई साफ रहना चाहिए, साफ रहना। वो तो बच्चे यहाँ भी उछलेंगे, सोफा में भी उछलेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो इट इज गोइंग टू बी अ रकस। एंड दैट्स व्हाई वी मेंटेन द हाउस एवरी डे। नहीं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा घर ऑर्गेनाइज नहीं रहता, मैं कुछ उठाती हूँ फिर वो गायब हो जाता है। एक सिंपल रूल है, हाँ बच्चों को छोड़ दो, बच्चे तो स्कूल का काम करें, बड़े जो चीज जहां से उठाए उसे बस वहीं रखो। हाँ हाँ। कभी भी डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, मैं करेक्ट। अभी जल्दी में हूं, मैं टेबल पे छोड़ गई, पर शब जैसे तुमने बोला शाम को आई, मुझे पता था कि दिस लाइक सपोज
स्क्रू ड्राइवर, इट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर ड्रॉर, और उसको हाँ, वहां रख दो। वरना right. होता क्या, आधे टाइम घरों में मैंने देखा सामान ढूंढ रहे होते हैं, ये पता कहाँ रखा था, ये तो यहाँ था, ये कहाँ गया। अरे हाँ, मैंने पिछले, आपका आधा टाइम सामान ढूंढने में जाता है, हाँ, वेरी ट्रू। क्योंकि मैंने अपनी जगह से उठाया, मैंने नहीं रखा, तुमने पहले रखा होगा, अब हम ये ढूंढ रहे हैं कि लास्ट टाइम किसने यूज किया था, उसने कहाँ रखा हो। वेरी ट्रू। तो सो अगर ट्रू। आप जो एडल्ट्स हैं, एटलीस्ट मतलब बच्चे भी धीरे धीरे, आप जैसे जैसे तुमने बोला, आप बच्चों को, मैं भी वही करती थी, अगर आपने अपना कुछ सामान उठाया उसे वहीं रख दो। वही रख दो, हाँ। वरना सबके घर में सुबह का सीन सोच लो क्या होता है, आधे टाइम लोग भाग ही रहे होते हैं। अरे बाप रे, बाप मेरा रे। ये नहीं मिल रहा, आपने देखा कहाँ रखा था, कहाँ गया, अरे कल तो वही था। Yeah, very true. So what are those must-haves when designing a space that nurtures both adults and children? क्या must-haves होने चाहिए कि ये तो होना मस्ट ही हैव, चाहिए? हाँ मस्ट हैव में सबसे पहली चीज कंफर्ट और फंक्शनल। जैसे हम्म, अगर, जैसे ही तुमने बच्चों की बात करी तो मुझे याद आया, बच्चों के केस में फर्नीचर का बहुत ध्यान रखना, इट शुड नॉट हैव शार्प एजेस। याद है जब right. बच्चा चलना शुरू करता है, बड़ा होता है, किसी भी हाँ, चीज से छू कर लगता है चोट लग जाएगी, अभी हमारे बच्चे बड़े हो गए, सो वी डोंट केयर, बट दीज आर द थिंग्स विच कम्स इनटू फंक्शनल। correct, कि correct. आप कोई भी फर्नीचर आइटम ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, इट शुड नॉट हैव sharp edges, it should have round finishes and all those things. So Correct. comfort first आ गया, functional आ गया कि your waste should not be obstructed. मैंने हम्म, 2 पौधे लाके कि भाई पौधे रखने, बीच में रख दिया, वो आ रहे हैं जा रहे हैं उनके बीच में, मतलब जो इजी मूवमेंट हो सकता था, इट इज अ बिट रिस्ट्रिक्टिव, क्योंकि बीच complicated. में वो जगह उतनी है कि मैंने वहां पौधे रख दिए। तो हाँ, इट डजेंट मीन कि ग्रीन के लिए मुझे वो रास्ता ही ऑब्स्ट्रक्ट करना, उसको हाँ, भी और सोच लो। सो हाँ, कंफर्ट हो गया, फंक्शनल हो गया। तीसरा है, इन इंडिया बिकॉज वी आर इन अ वार्म क्लाइमेट, यहाँ पे हमारा ये कारपेट और ड्राई क्लीनिंग नहीं चलती, हाँ, सो हाँ, ट्राई टू यूज वॉशेबल फैब्रिक्स। ओके। अब क्योंकि आप अगर आप घर में रह रहे हो, बहुत सारा बच्चे हैं, गिराएंगे भी, कुछ खाया सॉस के दाग लग गए, कुछ हो गया, सो हम्म, वॉशिंग इज इजी, एवरीथिंग आई कैन नॉट गो फॉर, गिव इट फॉर ड्राई क्लीनिंग। हम्म, सो यूज, ट्राई टू यूज वॉशेबल फैब्रिक्स। एंड ओके। जैसे मैंने कहा वार्म क्लाइमेट है, तो आई प्रेफर कॉटन, हम्म, हम्म, क्योंकि वो जैसे हुआ था ना, आपने सिंथेटिक या कुछ यूज किया तो आपको गर्मी में चुभेगा, या उसमें बैठते ही गर्मी लगेगी, या यू विल नॉट फील कंफर्टेबल, बहुत पसीना आ रहा है राइट। या कुछ। तो ये सब बेसिक चीजें जैसे हम कॉपी कर लेते हैं, पर हम जैसे बहुत सारे कारपेट्स होते हैं विच इज फाइन, पर अगर अब हम्म, तुम देखो कारपेट की, अगर हमारे यहाँ जिस तरह से डस्ट आती है, या सपोज हाँ, पेट है, हमारे यहाँ तो रोज झाड़ू पोंछा जरूरी हो जाता है, करेक्ट, तो फिर करेक्ट। यू शुड हैव लाइक वीकली क्लीनिंग ऑफ द कारपेट सो दैट इट डजंट या, एक्यूमुलेट डस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। राइट, राइट, सो राइट। एज पर योर, लाइक अगर बच्चा छोटा है तो आप उस चीज का ध्यान रखोगे, बच्चा बड़ा है तो आप ऐसे सोचोगे कि मैं क्लटर फ्री रखूं, कुछ मेरे पास इजी बास्केट्स हो जहां बच्चों को समझना है, कुछ चीजें फैली, एटलीस्ट दे विल कलेक्ट इट एंड पुट इट इन द बास्केट सो दैट प्लेस लुक्स ऑर्गेनाइज्ड, दैट। Very true, very true. So Suhani is asking, so ma'am, we also have a problem with carpets. हम्म, So if you're not हम्म। using carpet, which mo- which washable materials are you talking about? सो अगर अब मैं कारपेट की बात करूं, तो इंडिया में आप देखना दरी आती है, कॉटन दरीज। Hmm, hmm. सो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको कारपेट कहीं रखना है, जैसे मान लो मैंने एक रीडिंग नुक बनाया बच्चे के साथ, लो सीटिंग का बनाया, मुझे लगता है मैं वहां दरी बिछा लूं, सो ट्राई हाँ, टू यूज कॉटन दरीज, वो वॉशेबल wow. भी है। इनफैक्ट कुछ Hmm. दरीज तो आप मशीन में भी धो सकते हो, वॉशिंग मशीन में। हाँ, oh तो lovely. समर्स में क्या करो, समर्स में यूज दोज कॉटन दरीज, एंड व्हेन इट कम्स टू विंटर्स यू कैन यूज अ बिट थिक कारपेट्स, क्योंकि आपको नीचे चलने में बच्चे को ठंड लगती है, ऑल दोस थिंग्स। Right, right, सो फिर वो जो मोटे कारपेट्स होते हैं, देन यू हैव टू गो फॉर अ वैक्यूम क्लीनिंग और ड्राई correct, क्लीनिंग एंड ऑल दोस correct. थिंग्स। हाँ, पर हाँ. एज पर द वेदर ट्राई टू स्विच टू कॉटन दरीज। Okay, ठीक है. I hope it answers your question, darling. So thanks. Okay, so which comes to our next question. Now, so can home decor become a fulfilling second career, like on a side hustle later in life? Like you have created like a second career. So I just want to know that for people who are inspired or people who really want to do something on home decor, what will you suggest as a second career or what will you suggest as a career option? As a career option, yes, definitely 100%, thanks to social media, Pinterest, Instagram. So
like nowadays you have stylists, you have interior designers, you have upcycling, who people who are upcycling furniture like anything, or people Hmm. who are like especially there for organizing your homes. Yeah, So yeah. thanks to social media, because if you have a passion, you can do anything. You don't have, you can start and you don't have to spend anything, because Hmm. your page is your testimonial. Yeah, Whatever yeah. you are doing, it will be showcasing on your page. So you can try, you can start small, and gradually you can provide your services. Suppose somebody is into gardening and they want to decorate, or uh, like other people balcony garden, or want to give tips for gardening, they can do so. If I'm like interested in writing blogs about how to decorate your spaces, I'm good in writing, I can start a blog like how to decorate your home, about those things. Similarly, if I'm into a DIY, I like to do recycling things or upcycling things. People are doing like tremendously good in recycling, because as I was talking about, that was a small example how to convert a handi into planter. But Right. people are using old furnitures, they are painting, stenciling, and all those things. Correct, So I correct. think so. Yes. I feel limit is like end is, it is Yes, limitless nowadays. You can absolutely. do anything, because Wow. what you, if you have a passion, you will like to explore it, Correct. and moreover you will be having a real life experience, real, Mm-hmm. which is far more than the only having a degree. Correct, Because I correct. totally understand it, from degree you have all those nuances of that particular interior designing and all those things, but if you have a passion, gradually you can start learning, experimenting and all those things, and you can do it. Correct, correct. No, I agree with that because I've seen your page. You're showcasing your own beautiful house every day, and you have a new taste of showcasing. So someday it's plants, someday it is balcony, someday it is your living area, someday it's just your flowers. So every day it has something to look forward, and that is your. I mean, I would say it is your innocence and simplicity which talks than anything else, because people are not here to look for picture perfect, like you said correctly. They are looking for normal humans. We are in the AI world, we are not looking for AI version of homes. We are looking for homes which looks realistic. Yeah, I can relate. एग्जैक्टली, अगर मेरा घर है तो बालकनी में कुत्ता भी दिखेगा, कभी कभी कपड़े सूखते हुए भी दिख जाएंगे, बिकॉज कपड़े कहाँ जाएंगे फिर. Ah, very true, So very it true. should And be that is what your uniqueness is, and that is what everybody should think about. That don't worry about emptying the whole house when you have to start something like this. It is perfectly all right. Please showcase those little flaws, because that makes you more human than anything else. and moreover we all are here, मतलब, especially we are learning, nobody is perfect. It is Correct. my home, I have decorated my way, now I am showcasing, and maybe from others I am learning. Like जैसे suppose Correct. plants का है, मैंने किसी के हाँ, example कहीं देखा, उसने कैसे इस plant को लगाया, so I will हाँ, learn and then I will try it in my garden or something like wow. that. So हाँ, start small, and if moreover if you have a passion, you can do it, because I correct. think most of the time you need passion. Right, right. Passion, and I also feel that if you want to create it like an earning, or you want to create something like that, it also needs a lot of patience and perseverance, because people see that abhi consistency nahi rakhenge but expect karenge turant results. Those are not possible. So Very true, because I think that is very needed, because that is what I see in your page also. You're very consistent in what you're doing. You're maintaining your standards when you're doing it. So all those things are also something which we need to focus upon when we're doing something like this. because in India, thankfully we are so populated, there are a lot of qualified interior designers, so why anybody will come to me just because I'm showcasing and not hire an interior decorator, right? So if Correct. I'm doing something, I have to create my niche, maybe because I'm having a real life example, or you can say practical examples, but I should be good in whatever I'm doing. Correct. So Correct. you have to create your USP or niche gradually. Hmm. Very, very true. Very true. So thank you so much. That finishes our questions, and you've been awesome. But I Thank have you. some fun rapid fire questions for you. Are you ready? Yes. Okay. You were thinking yes or no. Okay. Um, So because it has. I cannot say no. Yes, I don't have a choice. No, no, you have a choice.
नहीं नहीं, You yes, can obviously say no, but I would still want if you can say a yes. yes, yes, big yes. Oh, lovely. So, home to you is. Hmm. Home to me is, Hmm. जैसे मैंने बोला था, my identity, like you can say, or my safe space. Okay, your safe space. Hmm. Okay. One deco item every parent should invest in. Plants. Oh, lovely. Okay, I would have also done that. Your go-to color for peace at home. Yellow. Okay. Corporate life in one word. Corporate life in one word. दौड़ा दौड़ा भागा भागाचं. Decorating or decluttering? What relaxes you more? Decluttering. Okay. What always is your coffee table? What What's always is my what's there on your coffee table always? a plant. Okay. A small planter is always there. Okay. First thing you styled after quitting corporate. My balcony garden. Oh, lovely. A corner of your home that holds your most beautiful memories. Where I'm sitting right now, Okay. because at the back it has got photographs of our 25th anniversary. Oh, that's so sweet. That's lovely. Oh, I can see it now. Yes. Lovely, lovely, sir. So, poetry or paint, what heals you faster? Poetry. I want to hear a small one. मुझे देखना पड़ेगा, मुझे एक मिनट दो, मैं देख, हाँ. जस्ट 1 मिनट. मैं जब जॉब में थी, Okay, okay. अगर हो सकता है तो we'll be more than happy to hear it. मुझे याद नहीं रहती, अपनी पोएट्री एक बार देखनी पड़ती है. हाँ, कोई बात नहीं, आप देखो. मतलब is it too difficult to get it or it नहीं is? नहीं, इट इज देयर, इट इज देयर. Okay, okay. ये मैंने, मतलब आई वॉज नॉट राइटिंग पोएट्री सिंस चाइल्डहुड. जस्ट वन फाइन डे, जैसे लोग कहते हैं ना कि अपने आप हो जाता है, मेरे हाँ, शायद भी हाँ, शायद ऐसे हुआ. सो हाँ. वन फाइन डे माय सन यूज्ड टू स्टे इन डे केयर. Okay. मैं उसको लेने गई थी मे बी 10 years हाँ, बैक और ऐसे कुछ. तब मैं लौट के आ रही थी, तो मुझे लग रहा था, बिकॉज यू हैव डेडलाइंस एट होम, देन यू आर पिकिंग योर सन ऑन गुड़गांव का ट्रैफिक. हाँ, तो फिर मैंने हाँ. ऐसी कुछ कार में लिखा था, और इसका टाइटल है दौड़. Okay. दौड़, मैं वो सुना रही हूँ. Hmm. बचपन में सुना था, उठो दौड़ो भागो, Hmm. वरना पीछे रह जाओगे. फिर क्या था, जिंदगी एक दौड़ बन गई, सरपट भागती, कभी न रुकती, सुबह शाम दिन, एक निरंतर दौड़. अलार्म के साथ सुबह उठने से रात को थककर निढाल होने तक, बच्चे को स्कूल भेजने की दौड़, ऑफिस टाइम पे पहुंचने की दौड़, डेडलाइंस मीटिंग समय पर खत्म करने की दौड़, शाम को समय से घर पहुंचने की दौड़. दौड़ दौड़ दौड़. Okay. फिर एक दिन रुकी और देखा, इस भागदौड़ में मन कहीं पीछे छूट गया. टटोला तो पाया वो उदास है. उसने पूछा, हम क्यों दौड़ रहे हैं और किससे भाग रहे हैं. हाँ. जब सबका अपना सफर अलग है, तो किससे आगे निकलने की दौड़ है. Wow. That is so true. बस उसी वक्त तय कर लिया, बहुत हुआ, अब और नहीं. तब से बस रुको, देखो और अपनी रफ्तार में चलो. Wow. मस्त रहो, स्वस्थ रहो. और इसकी लास्ट लाइन है, दौड़ना ही है तो मैराथन दौड़ो, कम से कम मेडल तो मिलेगा. I think. Oh, this is fantastic. It is amazing. तभी आप मैराथन दौड़ते हो, अब मैं समझ गई. नहीं, मैं तो वैसे भी पहले रुक गई, मैं तो पहले भी रुक गई हूँ, अब मेडल भी ले रही हूँ. नहीं, उसके बाद दौड़ने का मन करे तो हमने मन ये बिगाड़ा. एग्जैक्टली, तो ऐसे दौड़ो ना कि मेडल भी मिले. हाँ. सही बात है. I agree. I agree. Beautiful. It is very beautiful. It's very nice. It is. I mean, it is touching hearts, and it can feel. मतलब I can feel every word of it. कि actually हम भागते ही तो रहते हैं.
कब हमने सोचा और किसने बोला है हमें दौड़ने? मतलब हमारा मन ही बोलता है, हम खुद के ये मन को ही बुलवाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जस्टिफाई करते हैं कि यार मैं क्यों कुछ इतना परेशान हूँ, सब लोग यही कर रहे हैं, हर जना दौड़ रहा है, वो तो ऑफिस से 8 बजे आती है, मैं तो 6 बजे आ जाती हूँ। हाँ, हाँ, करेक्ट, 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 वेरी ये वेल वाला सेड। रहता है। वाओ, इट इज ब्यूटीफुल। सो अब मेरे को थैंक एक यू। कोट बताओ, यू लिव बाय एज अ क्रिएटर एंड अ पेरेंट। कोट। हाँ, एक छोटा सा कोट कि हाँ ये कोट मतलब डिफाइंस यू एज अ क्रिएटर, एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ पेरेंट। लाइफ इज आइसक्रीम, ईट इट बिफोर इट मेल्ट्स। हाँ, ये मेरा फेवरेट हुआ करता था जब मैं छोटी थी। मुझे बट बहुत पसंद आता है ये। हाँ, हाँ, my mom used to say this to me. Swati, life is an ice cream, enjoy it before it melts. So yeah, एग्जैक्टली क्योंकि हाँ, हम जनरली उस चीज को पोस्टपोन करते रहते हैं, तो हाँ, आइसक्रीम अगर पोस्टपोन किया वो तो गई। गई ना, फिर तो गल के हाथ ही हाँ। गंदे होंगे या फिर गिरेगी, यस। whatever. Lovely, lovely. So that finishes our rapid fire, and you were fantastic. थैंक यू। You were just blown. So you were on थैंक यू। fire, girl. So it was very heartfelt, it was very inspiring, and I loved every bit of your conversation because it was directly Dil Se, and I could so feel it. And thank you so much for reminding us that creativity does not have to be loud, it can be slow, soft, and deeply meaningful. Thank you so much, Anupama, because so for all the parents, we can see that you can create beautiful spaces even in the chaos of life. You have to start small, start with decluttering, small plants. She's shown so many beautiful plants like ZZ and snake plant to name with. Also, water propagation, right, Anupama? वेरी ट्रू। आप यू कैन वाटर प्रोपोगेट एनी प्लांट, लाइक इफ यू फाइंड मनी प्लांट और इज द सिंगोनियम, एटलीस्ट स्टार्ट, हाँ. स्टार्ट, एटलीस्ट ट्राई 2-3 plants. So if you loved today's session, make sure you follow Anupama on Instagram. Her Instagram ID is very simple, ANUPMAR. That's am I right, Anupama? 100%. Okay, so for daily decor inspiration and poetic reflections, because you've just seen how beautifully she writes poems. And don't forget to subscribe to my channel. Drop your thoughts in the comments. We would love to hear your thoughts about the session. And don't forget to share this episode with a friend who wants to learn home decor, who wants to know that yes, home decor can also be a profession because we have a living example right in front of us, and that is Anupama. So thank you so very much to all of you who are listening, who are here, and 100 times thanks to Anupama for being here and inspiring us with your words of wisdom. You truly my session says wisdom waves, but today it's wisdom waves by Anupama. So you have lived up to the name. So Pleasure is totally mine, Swati. It was so nice to talk to you, as if we are sharing our thoughts and correct, all those things. correct, I feel correct. so good, so good. Pleasure is Wow. totally mine. Thank you so much. Totally honored and humbled. Thank you so Thank you much. so much. Thank you so much. And thank you everyone for joining in. And wait for our next episode, which is going to come on next Wednesday. Till then, take Thank care. you. And in case if you have any query with respect to home decor, please feel free to reach out to me through DM or whatever way you want. Yeah. Absolutely, absolutely. Chalo, Thank take care, you. everyone. Bye. Good Bye. night. Good night. Thank you. Have a great weekend ahead.